क्या? Okay, now hello everyone. Myself Bharti Pawar. I'm the class speaker and coordinator from BTech IT third year from Guru Jambeshwar University of Science and Technology. We all are here to perform a GD on a very interesting topic, that is fake feminism versus women rights. First of all, I would like you guys to introduce yourself. Okay, Vaibhav. Hello everyone, I'm Vaibhav. I'm joint coordinator of Coders Club, and that's it. Like I can introduce more, but take it. Hitesh. Hello everyone, this is Hitesh. Everyone knows I am core member of Coding Club and third year student of BTech IT. Hello everyone, I am Parishlesh and I am a student of BTech IT in Guru Jambeshwar University of Science and Technology, and I am a core team member of media team in our university. Hello everyone, I am Pushkar Singla from BTech IT third year of Guru Jambeshwar University and Science and Technology. I am coordinator of Aptitude Club. Thank you. Pooja. Hello everyone, I am Pooja. Bas, I am not in any group. Hello everyone, I am Yogendra, and I think we should start this discussion from now. Okay. So shall we? Gaurav is also there. Hello everyone, I am Yeah. from BTech IT third year and I am a coordinator of website. Okay, now let's move ahead with this interesting topic. So what is feminism? Basically, feminism is putting men's and women's equal, their rights equal, and not making women superior, making women independent, and making the equality of man and woman in the same direction. So what do you think, Yoginder? Actually, in the feminism, we discuss about the rights of women, and as far as this topic is concerned, in India also, from many centuries, we always discuss about the rights of women, and from our ancient history also. For example, अगर हम और countries के perspective में भी देखेंगे तो ये वाली चीजें हमेशा से है कि women को उसके rights में थोड़ा नीचे रखा गया है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है या फिर यूएसए है. यूएसए में भी इंडिपेंडेंस के 100 इयर्स के बाद उनको वोटिंग का राइट्स मिला. तो ये वाली चीजें वहां से निकल के आई. फिर हमने जैसे जैसे उनको ज्यादा राइट्स दिए तो वो उनका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होने लगा. तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिस्कशन. दैट इज माय पॉइंट. So Yogendra, I would like to ask what rights do women don't have and men have in this present time? I mean, mostly every single right men possess is also actually, have women's right. Yeah, actually, personally, I am agree with you. This is a point of discussion that women is actually having more rights than the man. But the main point is we have to make a mechanism in our country also that women cannot misuse his or her rights. Sorry, cannot misuse her rights. वुमेन को राइट इसलिए ही दिया है ना क्योंकि men are more superior than women. ये बात है. Actually, ऐसा नहीं ये जो मैन वुमेन्स के ऊपर वायलेंस का यूज कर दिया है. It is not like that. एक बार में भाई योगेंद्र पूजा को बोलते. हाँ, तो अभी कह रहे हैं कि वुमेन के पास ज्यादा राइट है एज कम्पेयर टू मैन.
but still there are cases of Hmm. violence man मतलब harassing women. तो ऐसा क्यों है आज भी कि अगर women के पास rights है ज्यादा तो But see, in that the thing you are saying is absolutely correct. But the important thing to notice here is the जो गलत चीज है ना वो राइट्स में नहीं है, वो लॉज में है. द लॉज आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट और फीमेल के पास ज्यादा राइट है. तो जैसा कि भारती ने कहा कि विमेन वर ऑप्रेस्ड फॉर सो मेनी इयर्स, तो उनके पास अगर राइट्स ऐसे बहुत ज्यादा है तो इट्स फाइन. तो आई don't agree with that statement. So just because you were oppressed for a lot of years doesn't mean that you now have the chance to oppress your oppressors. That's not how you are going to achieve the equality. To achieve equality you need to be on the same base. ठीक है, like I'm not saying कि ऐसे laws नहीं होने चाहिए जो फीमेल्स की उनके जो उनको प्रोटेक्शन के लिए हो, तो होने चाहिए, वो स्ट्रिक्टली अप्लाइड होने चाहिए. बट मिसयूज वाला पार्ट जो है दैट इज गोइंग वे आउट ऑफ हैंड्स नाउ. लाइक इफ यू वुड लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेट्स से रेप, according to constitution a male cannot be raped because by definition of rape it's by penetration of something. It can be a human limb or anything, or can be an artificial object that constitutes as a rape. But if इस definition के according males तो rape हो ही नहीं सकते. At this point, let's say there is a male and female and the female rapes that guy, she can go out and file a case against the boy कि इसने rape करा है, and the boy will not be able to do anything. And this is because of the rise of fake feminism. फेमिनिज्म का जो गोल है वो एक्चुअली अच्छा है कि मेल और फीमेल इक्वल होने चाहिए, बट इट्स एग्जीक्यूशन इज वेरी पुअर. Now, if you would go out, you will ask males, they are afraid of marrying. डर लगता है, क्यों? क्योंकि a female has enough power that अगर कल को वो चाहे तो कह दे कि इन्होंने तो डाउरी लिया है मेरे से. They can put the entire family in the jail, and then they can say कि अब divorce चाहिए मेरे को, alimony दो. Alimony is कि अब divorce के बाद male gives some money to the female ताकि वो अपने को support कर सके. child support होता है, पर child support और alimony अलग अलग चीज होती है. ठीक है. So look at this. Giving a dowry is illegal, fine, but giving an alimony is not, even when the woman is capable enough. अगर आप केसेस को देखोगे तो you will find there have been a lot of cases जिसमें the woman is earning well enough and then too she is asking for alimony. So it's a very serious issue at hand. I agree with the Vaibhav's points. As he said, laws are to be enforced properly. हमारे लॉज में ये है कि वुमेन हरास हो रही है तो उसकी मतलब एविडेंस ज्यादा नहीं मांगते कि एविडेंस क्या आपके पास कि हरास हुआ. अगर कोई जिस तरह की फाइट होती है, चाहे नॉर्मल टॉक फाइट थी, बट अगर वुमेन ने कह दिया कि मेरे को हरासमेंट हुई है तो उसके अगेंस्ट, मैन के अगेंस्ट केस होगा. बट अगर क्या हरासमेंट एक इमोशन है, वो मेंस के साथ भी हो सकता है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर आपको हरास कर रहे हैं तो आप वुमेन के अगेंस्ट कर सकते हो क्लेम, या फिर आप मैन के अगेंस्ट कर सकते हो, कुछ भी. मतलब सिर्फ वुमेन के लिए ये अवेलेबल है, जो कि एक स्यूडो फेमिनिज्म को बढ़ावा देता है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है कि फेक फेमिनिज्म वर्सेस वुमेन राइट्स. तो स्यूडो फेमिनिज्म एक्चुअली प्रमोट करता है कि वुमेन को ज्यादा राइट मिलने चाहिए, जो कि गलत है. कई मेंशन है कि वो है, तो उसमें वुमेन की जगह अगर ह्यूमन हम कहते हैं, ह्यूमन हरासमेंट वायलेशन, तो ज्यादा बेटर रहता है उस जगह पे. तो ये बेसिकली फेमिनिज्म ये रिफ्लेक्ट करता है, उसका फेमिनिज्म का आइडिया, मोटिव आइडिया क्या है कि जो सोसाइटी है ना, जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा फेवर करता है. मतलब यही कहना चाहते हैं मेरे को. मेल को कैसे, मेल पर्सपेक्टिव को कैसे?
नहीं, जो फेमिनिज्म का रिफ्लेक्ट यही तो आइडिया करता है कि जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू है सोसाइटी उसको ज्यादा फेवर करती है। एक्चुअली फेमिनिज्म का मतलब है कि वुमेन्स और मैन के राइट्स को इक्वली रखते हैं, तो मेल का फेवर वाली तो कोई बात ही नहीं है। सोसाइटी ये बिलीव करती है ना, मैं ये कह रहा हूँ। एक्चुअली आई सोसाइटी थिंक कि अगर फेमिनिज्म का आई थिंक लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं अंडरस्टैंड। सिर्फ फेमिनिज्म मैन या वुमेन्स के लिए नहीं है, जितने भी जेंडर है सोसाइटी के लिए ऑल, मतलब उनको इक्वल राइट्स मिलते सबके लिए है। यहाँ पे सिर्फ वुमेन या फिर मैन या फिर किसी की बात नहीं होती। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वल राइट्स। कितने नो जेंडर वन इज सुपीरियर। या there are only two genders. कितने जेंडर है? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कितने 3 जेंडर? जेंडर, ट्रांसजेंडर ऑल्सो ओके, इंक्लूड होता है इसके अंदर। बट ठीक है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा अभी। Exactly. ठीक है, उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक। भारती, नोट दैट डाउन, नेक्स्ट टाइम दिस शुड बी द टॉपिक। हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर? wait, Gaurav wants to say something. In my opinion, as we know, Yes, Bharat. to achieve equality among the men and women. But I have read one of the case that Indian Penal Code में एक एक्ट बना था, पॉस्को एक्ट बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है कि 18 ईयर से कम जो भी गर्ल्स होती है वो किसी भी बॉयज पे कंप्लेन 18 करती है, तो वो उसमें क्या होता है कि उसको बेल नहीं मिलती है। अब वो अगर केस भी गलत होता है तो उसमें भी बॉयज को वो बेल नहीं मिलती है। तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा था कि एक केस हुआ था, मतलब एक बॉयज के ऊपर मतलब गर्ल्स ने केस किया था, वो भी केस मतलब फॉल्स मतलब था। तो उसको 20 साल के बाद 20 ईयर्स के बाद उसको बेल मिलती है बॉम्बे हाई कोर्ट से, तब उसको मतलब रिलीज मिला। और उसमें 20 ईयर्स उसके मतलब वेस्ट हो गए एक तरीके से। तो इसका मिसयूज हुआ एक तरीके से उसके राइट्स का। और ये एक मतलब हमारे इंडियन कोर्ट में मतलब ये इंडियन कोड का हम कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा वो है डिफेक्ट है कि वो उस 20 साल के बाद उसको मिला जस्टिस उसको साथ में बॉयज। जस्टिस लेट इज तो जस्टिस। ये हम या तो एक तो हमारा प्रोसीजर भी बहुत स्लो है कि धीरे धीरे काम होता है यहाँ पे। और अगर एक बार किसी के मतलब इसमें ये भी है कि अगर किसी भी गर्ल्स ने 18 ईयर बिलो कोई भी गर्ल्स होती है, या उसने कोई भी कंप्लेन कर दी इस बॉयज के खिलाफ कि मतलब ये कुछ भी कर रहा है, भले ही उसका रेप ना हुआ हो, कुछ भी ना हो, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है, तब भी उसको बेल नहीं मिलती है इस एक्ट के थ्रू। अगर उसके ऊपर अगर कोई भी ये एक्ट लग जाता है तो उसे बेल नहीं मिलती है जब तक उसका केस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। तो ये एक तरीके से मिसयूज है राइट्स का बिल्कुल। और ये केवल बॉयज को, गर्ल्स को नहीं रखा है, बॉयज के खिलाफ, Well, बॉयज I के साथ ऐसा think कोई for वो नहीं that है। situation, there must be a proper inquiry against the girl and the boy also, and But then there will be no proper there should be inquiry a between them. procedure about the. When anyone, देखो when जैसे girls ये complain it, the case will be made and the boys will. जो ये रूल है ना, ये जैसे रेप वगैरह ऐसे सीरियस ऑफेंसेस में कि यू जस्ट अरेस्ट द बॉय, ये नेसेसिटी तो है। आई वोंट डिनाई कि इसे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यू नो हाउ बैडली women आर ट्रीटेड इन पब्लिक। ईव टीजिंग वगैरह इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये जो चीज है वो नेसेसिटी है, बट इसी नेसेसिटी की वजह से ना जो बेकार लोग होते हैं, बेकार फीमेल्स, वो इसका फायदा उठाते हैं एंड दे यूज इट एज अ वेपन। तो इस वजह से हमें इनको लॉस को मॉडिफाई करना चाहिए। बट क्या होता है, लॉ मॉडिफिकेशन इतना आसान नहीं होता। जैसे इसने गौरव ने पॉक्सो एक्ट का बताया, तो उसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि फेक फेमिनिज्म में क्या होता है, जो फेक फेमिनिस्ट होती है ना, सूडो फेमिनिस्ट, दे एक्ट लाइक दे आर एक्टिंग फॉर द विमेन, बट दे हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडा। जैसे जब पॉक्सो एक्ट था, इन द बिगिनिंग इट वाज जस्ट फॉर गर्ल्स, तो द सुप्रीम कोर्ट वांटेड इट टू बी जेंडर न्यूट्रल, तो तब करना चाह रहे थे। देन द विमेन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कि व्हाई आर यू इंक्लूडिंग बॉयज। So that thing is a very serious issue and everyone needs to look into. तो आप होता क्या है कि we all know कि feminism is a good concept, but right now feminism has a very bad image. क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा जो टॉक्सिक चीजें निकलती हैं, they are like हम feminist हैं, तो this creates a very bad image. Think like this, I'll give you a good analogy. There's a basket of apples. Okay, there are 10 apples, and out of these 10 apples you ate 3 apples,
और तीनों खराब थे एकदम, you got sick. So would you say the apple in the basket are good? You won't. You will be like ये तो बेकार है. Even though the next 7 might be good, but you will say कि ये बेकार है. और ये सेम चीज हो रही है फेमिनिज्म के साथ. फेमिनिज्म का कंसेप्ट अच्छा है कि आप मेल और फीमेल के इक्वल राइट हो, कि किसी जॉब में जाना है और लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो दे हैव एन इक्वल चांस, तो वो होना चाहिए. आई फुली सपोर्ट दैट, वैसे ही होना चाहिए. बट इनका ऐसे है कि फेमिनिज्म these pseudo feminists use this thing a lot कि आप जेंडर पे गैप को देखो, आप CEOs को देखो, all of the high paying CEOs are men. But like logic एक बार को लगेगा कि अच्छा है, but technically look at it, you are just taking a very large number of data of very successful men and then you are comparing कि इसमें तो 50% representation है ही नहीं women का, इतने सारे CEO हैं वो मेल है, फीमेल CEO होता है ही नहीं, ये क्या तरीका है. बट दे आर नॉट काउंटिंग द अदर हाफ ऑफ द साइड, जो ब्रिकलेयर्स है और जो ऐसे जो बहुत रिस्की जॉब्स होते हैं जैसे माइन वगैरह, माइनिंग करते हैं, उसमें दे आर ऑलमोस्ट एवरीवन इज मेल. तो जो ये एजेंडा चलाते हैं सूडो फेमिनिस्ट, अगर ऐसा होता कि दे रियली केयर्ड अबाउट द इक्वालिटी, तो जब कोई भी जेंडर रिलेटेड केस आता है ना, दे वुड हैव बीन लाइक यार, दे वुड हैव चोजन द राइट थिंग, बट दे ऑलवेज गो फॉर द थिंग दैट बेनिफिट्स देयर एजेंडा. मैं आगे इसको लेके नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट वुड गो अ लिटिल रिलीजियस, नॉट रिलीजियस पर से, बट या, तो मैं अभी वो टॉपिक अवॉइड करूंगा. There are two girls here. I would like to ask their opinion about what is मेंस की ज्यादा जॉब्स होती है जैसे माइनिंग में हो गया. अगर आप लोगों को ये चांस मिले कि किसी माइन में जाके काम करें तो आप करोगे? डिपेंड ऑन सिचुएशन, अगर करना पड़े तो करना ही पड़े. नहीं करना पड़ेगा नहीं भैया, यू हैव अ चॉइस. आप चाहो तो करो, देयर इज नो प्रेशर. वुड यू? मतलब नहीं, ऑब्वियसली बात है कि नहीं Vaibhav, करना पर चाहिए. इसलिए एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज काफी सारे वीमेंस भी होते हैं जो उस चीज में काम कर रही होते हैं. आप जैसे देखोगे माइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन के भी नहीं रविंद्र, इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. आई वाज तो वहाँ पे आस्किंग भी वो अपने बच्चों के साथ भी ओपिनियन. काम कर रहे होते हैं. तो ये वाला तो पॉइंट डिस्कार्ड वैभव, करा. जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि I'll give you our data. Let मेरे me को नहीं just लगता इस counter check it क्वेश्चन on की इस internet. टॉपिक से कोई Yes, वो है. till 2019, it was illegal for women to work in mines in India. I am not saying कि मैं ये स्टेटमेंट बोल के ये नहीं कह रहा हूँ कि women should work in these mines. In my opinion, they should not, and they should rather do jobs which are comfortable, not these kind of hard toiling work. I am of that mindset. ठीक है, but I am just stating this fact कि they use these kind of things. आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये वाला पोर्शन नहीं दिखाएंगे. दे प्रोपोगेट दिस थिंग कि ना जो टॉप क्रीमी लेयर है ना, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे, बहुत लैविश लाइफस्टाइल है जिनकी, उनकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें तो इसमें 50% चाहिए. That's not good. That is what fake feminism is doing. जो proper होती है ना, they go for the benefit of the society. So there was this lady, I don't remember where from, तो she started doing a very good job. वो क्या करती थी, वो जो गाय का गोबर होता है उनसे मूर्तियां बनाती थी, and she started selling. That's the राइट या लॉस है नहीं.
अगर आप ये सोचो ये राइट्स या क्या लॉज repeat है करना नहीं है तो वो? वुमेन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी ना। बोलो। अगर हाँ, जैसे बोलो। गौरव ने कहा था कि 18 ईयर्स कोई गर्ल कंप्लीट करती है तो बॉयज को बेल नहीं मिलती, ये राइट्स काफी ज्यादा नेसेसरी हैं। अगर हम सोचें कि ये राइट्स या लॉज ना हो तो आप सोच के देखो कि वो गर्ल्स घर से बाहर निकलने को सोचेंगी या घर में भी बाहर, घर के बाहर तक जाने को सोचेंगी कि हम जाएं, फियर इतना रहेगा। ये राइट्स एक्चुअली मेंटेलिटी को थोड़ा कि हमारे पास एक राइट है, अगर कोई हमारे साथ हैरेसमेंट कर रहा है तो हमारे पास पावर है कि हम उनको क्लेम कर सकते हैं। अगर ये राइट्स ही नहीं होंगे तो एक ऐसा डर का माहौल सा बना रहेगा और मेंटेलिटी और डाउन जाएगी। वो मेंटेलिटी पे एक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो अपने आप अपने डर से बाहर निकल पाती। ये राइट्स और लॉज मेंटेलिटी थोड़ी सुधारने के लिए दिए गए थे, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने मिसयूज किया इसका, मेंटेलिटी सुधर गई, वो उसको गलत यूज करने लग गए। हाँ, ये उसमें बात misuse ये is the है issue कि only। जो करते हैं ना कि राइट्स होना गलत नहीं है, ये राइट्स है, अच्छी बात है, लेकिन जो इनका मिसयूज करते हैं ना उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं और वो मिसयूज करना गलत है। अगर आप उनको प्रॉपर्ली यूज करो, प्रॉपर्ली इनको क्या कहते हैं एस्टेब्लिश करोगे इन राइट्स को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना चाहिए, फेमिनिज्म एक अच्छी चीज है, लेकिन फेक फेमिनिज्म में यही आता है कि जो राइट्स इनको दिए गए हैं उनका मिसयूज करना, वो गलत चीज है। इसके रिpercussions मैन नहीं और है वुमेन में ज्यादा फर्क misuse नहीं है, करने सिर्फ के। साइक्यू का कुछ, मैन और वुमेन में साइक्यू या फिर थोड़ा मेंटेलिटी का फर्क है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है जो हम देखें। साइक्यू जैसे वैभव ने पूछा कि माइनिंग करना चाहोगे, वैभव मैं आपसे पूछूंगी आप आज माइनिंग करना चाहोगे, आप करना चाहोगे? अगर आपको भाई ना, यही तो कि से डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन नहीं है और कोई जॉब का तो अ मैन वुड डू एंड अ वीमेन वुड आल्सो डू, ठीक है? क्योंकि ये लेबर हार्ड वर्क जॉब है, वो सिर्फ एक मजबूरियां होती हैं, हर कोई नहीं करना चाहता उनको। हाँ, बट वो एग्जैक्टली मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज के लिए मना, कोई कंडीशन ऐसी अराइव होती है कि करना पड़ेगा तो करना ही है, उसमें बंदा फिर ये नहीं कहेगा कि मैं एक फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ। जो हार्ड वर्क की बात चल रही है, क्या वुमेन कंस्ट्रक्शन में नहीं काम कर रही? जो unskilled workers हैं, you are asking equality in every job. When asked by a feminist, they say that I want women to have 50% in the workforce, in all kind of workforce. They use this statement. This is a very broad statement. एक सेकंड, इसके 13 seconds रह रहे हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेंगे अभी मीटिंग को। ओके भारती, चलिए इसकी नीड नहीं है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आप होते हैं भाई, बेकार डूबे होते हैं। 2 मिनट रुको, चलो बुला लो उसको। आप कहाँ गया योगेंद्र? रिकॉर्डिंग हितेश को कर रहा है क्या? हाँ ऑन है। 2 मिनट रुकेगा तो उसको आने देंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। एडिट तो करनी पड़नी है हितेश को। हितेश को कंटिन्यू भी जाएगा। हाँ, तो वो चीज तो क्लियर है कि फेमिनिज्म कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक मिनट प्लेइंग द कार्ड ऑफ फेमिनिज्म इन अ नेगेटिव वे दोबारा से बोलो, रिपीट करो। रिकॉर्डिंग फेमिनिज्म कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन प्लेइंग द कार्ड ऑफ फेमिनिज्म इन अ नेगेटिव वे और इन अ रॉन्ग वे इज नॉट गुड। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन को राइट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है बहुत जगह पे जहाँ नहीं लड़कियां आगे हैं लड़कों से। आज भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और हम लोग को ऐसा भी पता है कि अब क्लास का ही ले लो, एक क्लास में कितना कम रेशियो होता है गर्ल्स का और बॉयज का वहीं कितना ज्यादा होता है। तो थोड़े बहुत राइट्स की वजह से वुमेन है जो वो ऊपर आ पा रही हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि फेमिनिज्म फेक फेमिनिज्म से मतलब फेक फेमिनिज्म एक तरीके से गलत है, लेकिन फेमिनिज्म से हम लड़कियों को से इक्वल दिखाना चाह रहे हैं लड़कों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं
लड़कियों का जो स्टेटस है या जो है हम लोग इतना डेवलप हो हमारी सोच डेवलप हो चुकी है, उसके बाद भी लड़कियों को वो स्टैंड नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। एक्चुअली ना यस अच्छा हाँ पूजा बोल। पूजा को बोले। हाँ, तो मैं भारती जैसे कह रही है ना, मैं वैसे सपोर्ट करती हूँ कि फेमिनिज्म अच्छी चीज है, लेकिन जो कई लोग उसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू में ले गए, मतलब कि जैसे अब हम बसेस मेट्रो में देखते हैं तो क्या होता है कि गर्ल्स शुड सिट एंड बॉय स्टैंड करके जाना चाहिए, मतलब खड़े होके जाए बॉयज, लेकिन ऐसा क्यों? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इफ एनीवन नीड्स सीट देन यू कैन, व्हाई ओनली बॉयज? मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार बॉयज ही उठे, मतलब हर जगह हर व्यू में डिफरेंट होता है। अगर कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, ओल्ड, अगर हम मैन की बात करें तो ओल्ड मैन को भी सीट की जरूरत है, सिर्फ वुमेन को नहीं। अगर हम और बात करें तो इनकम टैक्स में बात करें तो जो इनकम टैक्स है ना, वो वुमेन का एज कम्पेयर टू मैन, मतलब मैन को एक 2.5 लाख या 3 लाख के बाद मतलब पे करना पड़ता है, लेकिन वुमेन को ज्यादा राइट है, मतलब 3.5 लाख के बाद वो पे कर सकती है। एक्चुअली ना वो ज्यादा लिमिट इसलिए लेट मी चेक। एक्चुअली पता है कि ये टैक्स लिमिट इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अगर ये एक तरह से लालच किया जा रहा है कि मेंस कुछ पावर वुमेन्स को भी दें, क्योंकि पहले क्या था कि राइट्स ज्यादातर मेंस के हाथ में थे, घर मैन के नाम पे है, सारी इनकम मैन के नाम पे है। बट अब जब टैक्स रिलैक्सेशन वुमेन को मिल रहा है ना, तो क्या होता है कि घर भी वुमेन के नाम पे है कि टैक्स बच रहा है हमारा, तो बैंक अकाउंट्स भी वुमेन के नाम पे खुले हुए हैं। तो इसमें बेनिफिट वुमेन्स के लिए रहता है कि कुछ पावर आ जाती है, बाय चांस कोई कंफ्लिक्ट ऐसा होता है तो उनके पास एक मेंटेलिटी मतलब प्रोवाइड होती है कि आप एक्शन ले सकते हो, ये सब कुछ आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है। तो ये एक थोड़ा सा जो पहले मेंटेलिटी चलती आ रही थी कि सारा कुछ मेंस के हाथ में है, उसको थोड़ा वुमेन के हाथ में देने के लिए ये एक्सीड की गई थी लिमिट्स। तो वो अच्छा है सोसाइटी के लिए फिलहाल तो। बट लोग उसको गलत वे में ले रहे हैं ना, मतलब हर जगह अच्छी चीज को अच्छे वे में नहीं लिया जा रहा। दैट इज अबाउट फेक फेमिनिज्म। एक्चुअली पता है कि कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी लॉ होगा, उसके दोनों फैक्ट्स होंगे, कॉइन के दोनों साइड्स हमेशा होंगे। ये जो इसके नेगेटिव पॉइंट उठ रहे हैं ना, द रीजन फॉर दिस इज दैट द थिंग्स हैव बीन इन सच अ वे कि हर बार ना ब्लेमिंग होती है कि अगर मेल के पास कोई एक्स्ट्रा है, राइट, तो वी आर लाइक कि यार ये चीज करते हैं, ये चीज करते हैं, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट इट इज डन। लाइक लेट्स से women they say a lot about pay gap कि जेंडर पे गैप बहुत ज्यादा, जेंडर पे गैप बहुत ज्यादा है, which is actually non-existent, but we'll come to that later on. तो इस चक्कर में मैं ना फीमेल्स ना कि ये गलत चीज है। बट अगर जैसे टैक्स वाले, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने तो अभी पहली बार देखा कि देयर इज अ स्पेशल कंसेशन फॉर फीमेल, बट अब ये वाली चीज आई है तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बट द पीपल विल नाउ से ना कि आप जब हर चीज में इक्वालिटी करते हो तो इसमें भी इक्वालिटी दो। I'm not saying I'm supporting or saying कि I'm supporting those people जो सिर्फ हर चीज में equality करते हो, but you can't deny the fact that it's a valid argument. It's a valid आप जब argument. ऐसे कि इस सेंस में कि आप जब ऐसे कहते हो कि हर चीज में इक्वालिटी हो, हर चीज में इक्वालिटी हो, तो इसमें भी होनी चाहिए। वैभव यू आर राइट कि वैलिड आर्गुमेंट है, बट जब लॉज बनाए गए ना तो उनको भी कुछ सोच के ही बनाया गया था कि ये नहीं कि मैं विदाउट उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, इनको थोड़ा और डीप बनाया जाता है, इनको लिमिट में रखा जाता है। टाइम लिमिट हो सकती है इन सब की, कि इसकी टाइम लिमिट या इनकम लिमिट हो सकती है, बट इनको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके भी काफी अच्छे पावरफुल इफेक्ट्स हैं। अरे I'm not saying I'm denying. मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं। You are saying that. कहना अपने I'm saying that it's a valid argument, but it should be in limit also. हाँ। और जैसे वुमेन्स की पावर्स तो बड़ी है, क्योंकि अब हम देखें जो पहले वुमेन रेशियो था, वुमेन मैन रेशियो था, तो अब फिलहाल 1+ गया है। 2000
पहले 1000 से लेस रहता था, जैसे हम 1000 मैन पे पर वुमेन देखते थे पॉपुलेशन, तो अब 1000 प्लस गया है। तो ये इफेक्ट्स कुछ लॉज के कारण ही है कि चाइल्ड फोर्टिसाइड बंद हुआ या कुछ भी हुआ, तो ये लॉज चेंजेस के कारण ही है जो है मालिशियस इंटेंशंस वाली वुमेन्स का होता है, वो ही करती हैं सब। फेक फेमिनिज्म एक मालिशियस इंटेंशन है जो सोसाइटी में हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। अगर हम फेक फेमिनिज्म हटाएंगे तो कोई और चीज, हर राइट का बुरा यूज होता है। अब ऑनलाइन टीचिंग कितनी अच्छा एक्सपेक्ट है। एग्री विद योर पॉइंट पुष्कर। ऑडियो उस टॉपिक पे पुष्कर योर वॉइस इज लैगिंग है, थोड़ा इंटरनेट का देख एक बार फिर से जाता। एक्चुअली नेटवर्क चलो कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा देख लो। जैसा इसने कहा कि we can conclude that fake feminism is not a good thing, and the people who uses this fake feminism and uses women's right to oppress men are the main reasons of this fake feminism. We can say that. जैसा आप देखो मेल्स के केस में होता है, क्या हर मेल एक रेपिस्ट या हरासमेंट वाला हरास करने वाला पर्सन होता है क्या? नहीं। Similarly, हर women, बट वो बहुत स्मॉल पोर्शन होता है ना, जिस स्मॉल पोर्शन की वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि ऑल मेन आर डॉग, या फिर सभी मेन के साथ ऐसा होता है कि ही इज अ पोटेंशियल थ्रेट। एवरी वुमन कंसीडर्स कि भाई मेल्स जो होते हैं पोटेंशियल थ्रेट होते हैं, और ऐसा रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। पर वो इसलिए हुआ ना क्योंकि एक स्मॉल पोर्शन था जो जिनकी वजह से ऐसी मेंटालिटी दिमाग में आई। द सेम थिंग इज विद दीस फेक फेमिनिस्ट। वो ऐसी चीजें करती हैं जिनकी वजह से हर जो लड़की होती है जो एक्चुअली में अच्छा भी चाहे, उसके ऊपर भी ऐसा रहता है कि यार यू नेवर नो कि ये क्या कब कर दे, कभी फॉल्स केस वगैरह कुछ भी कर दे। तो वो वाली में चीज हो रही है कि छोटे पोर्शन की वजह से पूरा जो चीज है वो गंदा हो रहा है। मैं भी एग्री करता हूँ। सबने रख लिया अपने पॉइंट्स। आई आल्सो एग्री। लीडिंग पॉइंट मेरे ख्याल से यही है कि फेक फेमिनिज्म एक मालिशियस सोसाइटी का पार्ट है, बट वुमेन राइट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है कि वुमेन राइट्स ह्यूमन राइट्स की मतलब एक जनरल ह्यूमन राइट्स ही हमें ट्रीट करने चाहिए कि मैन और वुमेन बराबर राइट्स हों। हाँ, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। ये उनको एनकरेज फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। Yes, and I also agree. नहीं, they are essentially the same thing ना। ये वुमेन को एनकरेज करने के लिए बनाई गई है, हमें मैन और वुमेन राइट्स करने चाहिए, ह्यूमन राइट्स आने वाले टाइम पे ना खत्म भी हो जाएगा, मेरे को लगता है दैट विल बी बेटर। आने वाले टाइम पे इसको ये जो वो इनकम का स्लैब बता। भारती कितना वैसे लिमिट हमारी जीडी की? 35 मिनट्स। ओके, सबके पॉइंट्स कवर हो गए तो कंक्लूड नहीं हो गया अभी? क्यों भाई? हो कर तो दे इसलिए भारती इसको इस पार्ट को एडिट कर देना, अभी कर हमारी आवाज ही जा रही है। हाँ आ रही है तेरी, आ रही है भाई गौरव। भारती कंक्लूड कर। बोलना क्या हो गया? कंक्लूड कर, आई कंक्लूड कर, तेरा वेट कर रहे। तो सबने अपने अपने पॉइंट्स रख ही दिए, तो अब बस इतना ही है कि वुमेन राइट। तू चुप रह। क्या? अरे भारती बोल यार, तू बोलने दे यार इसको। The conclusion which we find in this GD is women rights are equal to the human rights. जो वुमेन्स के पास राइट्स हैं वो सबके पास होने चाहिए, जो सबके पास हैं वो वुमेन्स के पास होने ही चाहिए। Okay, thank you everyone for participating in this web of Parishlesh, Pooja, Hitesh, Gaurav, Pushkar. Thank you. Bye. Bye.
Bye.